uh, today's lecture is basically on transportation engineering, Unit 1, Part 3. Fine. So already we have discussed in up to Part 2. And so we'll take a quick look, basically. Quick look in the sense is outline. हमारा जो recap है कि हम लोगों ने last time क्या पढ़ा है. So I think so last time, first thing is the development plans. तो ये कमेंट कर सकता है कि लास्ट जो हमने डेवलपमेंट प्लान्स जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. सर यश हियर. Yes. सर जयकर कमिटी, नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान एंड देन लखनऊ रोड प्लान. Okay. Fair enough. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पढ़ी थी सर हमने. Great. I think so you are right now quite what we can say understood कि आपको क्या पढ़ा था आपने. Fine. So next part is the road development in India Vision 21 हमने पढ़ा था उसके अंदर में, right? कि विजन 21 में इंडिया का रोड मैप क्या है, किस तरीके से रोड को डेवलप करने वाले हैं. जनरली 2020 का हमारा रोड प्लान है बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं. एंड दी विजन 25 जिसका हम PMGSY की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि हम रूरल का जो डेवलपमेंट है उसके रोड्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि हमारा टारगेट क्या है बेसिकली. ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. सो टुडे this is all about the last time that we have learned last time. So today, before proceeding further, we have a task. If you have remembered, मैंने आपको एक task दिया था. The task was, can somebody comment what is CR, जो हमने last time पढ़ा था. Central Road Fund. Who's this? Sir, Utkarsh here. Okay. Hello. Yes. I am audible. You are audible. Yes. So CRF is Central Road Fund. Correct. Fine. So it is Central Road Fund या funding जिसको बोलते हैं. Next is NHAI. So basically what you can do is, instead of directly muting and unmuting yourself, आप chat box में भी इसका आंसर दे सकते हैं. So that what will happen, just in case I know कि maximum students के पास इसका आंसर रहेगा and you know it well. So what you can do is, instead of कि अगर आपको लग रहा है कि हर किसी को opportunity नहीं मिल रहा है, so what you can do is either you can type the answer in the chat box also, or you can raise hand, so that what happen, I can give the opportunity to different students if you know the answer. So in that way I think so we can work out. Fine. So NHAI is anyone? Nitesh here sir. Okay. National Highway Authority of India. Okay. So we'll instead of directly doing this, I think so Shamal, yes, we'll take your call also. Shamal Kasture. Yes, sir. NHAI, National Highway Authority of India. Okay, great. Next one is NHDP. Anyone? NHDP. Sir, Yash here. Okay. National Highway Development Projects. Okay, Pradnesh is saying, and I think so Utkarsh is also there. So National Highway Development Projects. Great. So these are the things. I think so. I feel as a student, you have searched for this. The Central CRF, that is the funding agency, is for basically what? जो फ्यूल के ऊपर आप सरचार्ज ले रहे हैं, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, 80% वो स्टेट को वापस करती है जो लोगों ने फ्यूल जो लिया था. बेसिकली इट इज लाइक कि हम लोग हर एक गैलन के ऊपर एक अमाउंट फिक्स करेंगे जो कि हम लोग चार्ज सरचार्ज के रूप में लेंगे, एंड उसको क्या करेंगे, हम रोड्स को डेवलप करने के लिए उसको यूज करेंगे. NHAI, autonomous body under the central government, and it is developing the national highways. And national highways वो क्या डेवलप करेगा, under the national highway development project. तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन है basically somehow. Fine. So today we are looking further. And what is IRC? Indian Road Congress. Yes. Indian Road Congress. Indian Road Congress. Basically, this is the guidelines, and the guidelines is basically for
दी कि मतलब आपको रोड्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके डिजाइन की स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल रिक्वायरमेंट वगैरह, या आपकी मिनिमम जो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन कितना होना चाहिए, IRC 57 सॉरी 37 एंड 58, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। तो वहाँ की गाइडलाइंस के हिसाब से आप रोड को डिजाइन करते हैं बेसिकली। ओके, देन ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, दिस इज द लास्ट स्लाइड जो हमने बोला था कि विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये आज का आपकी क्लास है जब हमने ये डिस्कस किया है। फाइन। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, फाइन, एंड द रोड पैटर्न्स। ये दो चीज हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। फाइन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम लोग रोड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं उसको हम तीन पार्ट्स में लेने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, बेस्ड ऑन वेदर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैरेज वे ऑन द रोड, कि रोड पेमेंट पर आपका किस तरह का कैरेज वे, एंड द लास्ट वन इज द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट सरफेसिंग प्रोवाइडेड, कि किस तरीके से आपका सरफेसिंग कैसे प्रोवाइड किया गया। सो दिस इज ब्रॉडली द वे इन विच आपको रोड्स को क्लासिफाई किया गया। फाइन। सो विल सी हाउ इट इज। तो फर्स्ट हमने क्या बोला, बेस्ड ऑन द वेदर। तो वेदर की बेस पे कैसा रहेगा? फाइन। तो वेदर, इफ यू नो कि हमारे इंडिया में कैसा है कि बारिश जो रहता है वो अगेन आपका अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे तो आपका ऐसा हो जाता है कि हर 3 मंथ्स में आपका क्या ना मंथ चेंज होता है, राइट। तो आपका स्प्रिंग में आपका आपका बारिश वगैरह रहेगा, मानसून वगैरह में बारिश रहेगा, आपका वाकई में ठंडी वगैरह रहेगा। तो वी हैव अ huge country, that too we have different different climates in different parts of the country. So accordingly different kind of weather patterns are there. So उसकी basis पे क्या है, फर्स्ट रोड आता है that is the all weather roads. All weather roads means कि कुछ भी रहेगा, whatever the season it is, ठीक है, until unless आपका ब्रिज के ऊपर से आपका या रोड जो है उसके ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, as there will be अनइंटरप्टेड पावर व्हाट यू कैन से ट्रैफिक फ्लो, मतलब कि उस पर कोई इंटरप्शन नहीं होगा या कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा आप है ना ट्रैफिक या जो भी आप व्हीकल है या गुड्स कम्युनिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इट विल बी अ जनरल फ्लो, देयर विल नॉट बी एनी ऑब्स्टेकल या इशू जनरेट नहीं होगा। फाइन। अनटिल अनलेस अगर कोई मेजर ऐसा कुछ हो गया कि बाढ़ आ गया है या कोलैप्स हो गया है, एल्स इट इज always good. Next is the fair weather roads, which means इसके अंदर क्या होगा कि जो ट्रैफिक है मानसून वगैरह के टाइम पे आपका क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। फाइन। सो जनरली ये टूट जाता है क्योंकि वो उतना अच्छा रोड्स नहीं होता। तो ये फेयर वेदर मतलब बाकी टाइम ठीक है, बट बारिश वारिश ऐसे कुछ हो गया तो उस टाइम पे इसका दिक्कत आएगी। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स एज फार एज दी दीज टू पार्ट्स आर देयर, ऑल वेदर रोड्स एंड जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वेदर रोड्स। फाइन। तो दीज आर द two what we can say things basically. Fine. Okay, next part is uh, based on weather। जो मैं आपको रोड्स बता रहा हूँ उसका एग्जांपल है, जो सी आपके रोड्स हैं जिसको आप कभी भी आप ऑल सीजन आप कभी भी इसको यूज करेंगे तो आपको कभी भी किसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। यू कैन सी द कंडीशन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेसिकली, ऑल वेदर रोड्स। एंड ये एग्जांपल कहाँ का, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, इट इज सेलम कोयम्बटूर हाईवे फ्रॉम चित्तौड़। फाइन। तो ये एक हाईवे का एक आपका क्लिप है जो इसके अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ इस टाइम पे। फाइन। सो आई होप ये बीच बीच में आपको विजिबल होगा बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रॉस चेकिंग इट फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। नेक्स्ट, दूसरा हमने क्या बात किया था, फेयर वेदर रोड। सो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फेयर वेदर रोड। सो इफ यू सी, अगर बारिश वगैरह मानसून आ रहा है, आपका रिवर ओवरफ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कंजेस्टेड हो जाता है। उस टाइम पे आपका पानी वगैरह का इशू रहेगा या उसके ऊपर अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज रोड का कैसा रहेगा, ऑलरेडी आपका नीचे पानी ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। एंड उस टाइम में क्या हो सकता है कि आपका वो रोड या ब्रिज आपका कोलैप्स हो सकता है। तो उस टाइम पे इसको मना किया जाता है। तो इसको कह सकते हैं फेयर वेदर रोड्स। बाकी टाइम पे काम करेगा, पर बारिश के टाइम पे देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसके टाइम पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ओवरफ्लोइंग गांधी रिवर नियर पनवेल, उड़न हाईवे का है ये आपका इन नवी मुंबई। फाइन। ओके। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैरेज वे ऑन द रोड। उसके अंदर में आपके अगर मतलब कैरेज वे जिस टाइप का है आपका उसके हिसाब से आपका रोड किस तरीके से रहेगा। तो कैरेज वे इन द सेंस आपका रोड या लेन जो हम बोलते हैं, तो इट में बी अ हार्ड सरफेस और जिसको हम लोग बोलेंगे पेव्ड रोड। जो उसका फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द पेव्ड रोड जिसको बोल सकते हैं।
फाइन। तो पेव्ड रोड मतलब क्या आएगा, उसके ऊपर जो टॉपिंग है वो हार्ड सरफेस रहेगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ पीछे इसमें से, तो अगर आप ये ऑल वेदर रोड्स देख रहे हैं, तो इफ आई जस्ट हाईलाइट ऑल्सो, ये जो रोड्स है इसके ऊपर आपकी हार्ड कोटिंग है, जनरली कॉल्ड एज हार्ड पेवमेंट सरफेस। फाइन। नेक्स्ट है आपका अनपेव रोड्स, विच मीन्स द रोड्स विदाउट ए हार्ड पेमेंट, जिसके ऊपर हार्ड पेमेंट नहीं रहेगा, या उसको बोलेंगे हम लोग अर्थ रोड्स और ग्रेवल रोड्स, मतलब जिसके ऊपर हार्ड कोटिंग नहीं है। फाइन। ओके। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस प्रोवाइडेड, आपका पेमेंट के ऊपर सरफेस अगर आपका कैसा प्रोवाइडेड है, उसके ऊपर कोटिंग है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आपका बेसिकली आता है। अगेन आपका टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सरफेस्ड एंड अनसरफेस्ड। तो सरफेस मींस द रोड्स विद एनी टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस और सीमेंट कंक्रीट, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिटुमिन या फिर बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं या तो सीमेंट टार रोड रहेगा, या टार रोड रहेगा, या फिर कंक्रीट रोड रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके टॉप पे रहेगा, इसको हम सरफेस रोड बोलेंगे। अनसरफेस्ड रोड जो रहेगा, द रोड्स विदाउट एनी टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस, उसके ऊपर बिटुमिनस सरफेस नहीं है तो वो अनसरफेस्ड रोड रहेगा। Fine, we'll see some examples of it. Now, कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये तो हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के देखे हैं कि मतलब कि किस तरीके के रोड्स रहेंगे वेदर कंडीशंस के हिसाब से या टॉपिंग के हिसाब से, उस तरीके से। देन नेक्स्ट पार्ट इज द बेसिकली मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, कि आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं रोड्स को। सो विच इज बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम इन द सेंस कि कितना ज्यादा ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या उस जगह पे कितना ट्रैफिक है, उस रोड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है आपका। तो आपका हैवी ट्रैफिक भी हो सकता है जिसके अंदर आपकी काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, मीडियम ट्रैफिक भी हो सकता है जिसके अंदर लाइट वेट बसेस वगैरह इस तरह का रहेगा, या लाइट वेट जिसके अंदर मोटरसाइकिल और आपके छोटे कार्स या बाईसाइकिल्स वगैरह। तो इस तरीके से कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, कितना कंजेशन है वहां पर, उस हिसाब से भी आपको रोड को मतलब आप क्लासिफाई कर सकते हैं। सो गिविंग एन एग्जांपल, आपका अगर हम बोलेंगे लक्ष्मी रोड साइड आप जाएंगे, पूना में कैंप रोड की साइड में जाएंगे, तो वहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। ज्यादा इन द सेंस कंजेशन वगैरह इस तरीके से ज्यादा है। एल्स आप बाहर की साइड में आएंगे, जितना धीरे धीरे उतना कम हो जाएगा। बेसिकली हैवी ट्रैफिक अगर आपको देखना है, या हैवी वॉल्यूम वाला जो है आपका, वो आपका हाईवेज के ऊपर जो हैवी एक्सल ट्रैक्स है, तो वो टनेज के ऊपर जाएगा। बट हैवी क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली कि कंजेशन कितना है, तो क्योंकि टनेज वाला पार्ट आपका नेक्स्ट आने वाला। तो लोडेड ट्रांसपोर्ट जो हम लोग टनेज की बात कर रहे हैं, राइट, तो मैंने आपको बोला कि हैवी ट्रांसपोर्ट, तो हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर क्या होता है आपका, आपका नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे आपका टनेज मतलब 3 टन 4 टन 5 टन, तो ऐसा मैक्सिमम लोड किधर आता है इन टर्म्स ऑफ लोड, वो कहाँ पे आता है आपका, जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो आपका हाईवेजेस के ऊपर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास 1 क्लास 2, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स हैं। एंड जनरली उसके बेसिस पे आपके नेशनल हाईवे स्टेट हाईवेज आपके डिजाइन होते हैं, एक्सप्रेस वे, तो ये टनेज के ऊपर इस तरीके से आप इनको डिजाइन करते हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज। फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लोकेशन एंड फंक्शन। सो लोकेशन एंड फंक्शन इन द सेंस कि किस लोकेशन पे और वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसके हिसाब से भी आप रोड को क्लासिफाई करते हैं। सो लोकेशन एंड फंक्शन का जो आपका पैरामीटर है, तो इसको बेसिकली क्लासिफाई किया गया था बेसिकली इन नागपुर रोड प्लान। सो राइट नाउ यू आर वेरी मच what you can say having a knowledge or you are very much versed with कि नागपुर रोड प्लान क्या था। तो नागपुर रोड प्लान में इसके एक डेफिनेशन दिया गया था कि लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ विल सी अकॉर्डिंगली कि उसको कैसे क्लासिफाई करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवेज इफ यू सी, तो नेशनल हाईवेज का हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि देयर आर मेनली हाईवेज। तो डेफिनेशन पार्ट्स एंड ऑल्सो मैंने इस बार पीपीटी इसमें आपको इस तरीके से क्लब किया हुआ है कि इसके अंदर आपके नोट्स डायरेक्टली इधर से ले सकते हैं आप, नेशनल हाईवेज वगैरह डेफिनेशंस वगैरह चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग रोड क्लासिफिकेशन मे कम इन एग्जाम्स। फाइन। सो नेशनल हाईवेज क्या है, जो पूरी इंडिया की लेंथ और ब्रेड्थ में आपको चलता है, एंड इनका जो मेजर टास्क है वो क्या करता है, पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा, आपके हाईवेज को कनेक्ट करेगा, आपके जो स्टेट्स हैं लार्ज स्टेट्स हैं उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, टूरिस्ट सेंटर को, ये सब चीजों को कनेक्ट करेगा। एंड बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। तो स्ट्रेटेजिक जो मूवमेंट्स हैं, विच मीन्स गिविंग एन एग्जांपल, अभी इंडिया का चाइना के साथ फेस ऑफ है, पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ है। सो इन दैट वन व्हाट वी कैन डू इज कि हमें अपने अगर आर्म्स एंड अम्युनिशंस या राशन को हमको अपनी अपने डिफेंस या अपने आर्मी पर्सनल्स को पहुंचाना है, तो उस टाइम पे नेशनल हाईवे काम में आता है। फाइन। Sir, नेक्स्ट इज द, यस sir, I have a doubt, sir. यस यस
सर यश हियर सर, माय डाउट इज जो बॉर्डर रोड पे मतलब बॉर्डर एरिया में जो रोड बनते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन करती है सर? कंस्ट्रक्शन कौन करता है सर? BRO व्हाट? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सर. Okay. Okay. Next part is the frame on which the entire road communication should. तो ये एक तरीके से नेशनल हाईवेज क्या है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है. फाइन. जैसे आप अपना अगर आपने आरसीसी वगैरह डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रेम खड़ा करते हैं, उसके अंदर में आप इंटरनल आपका मैसनरी वर्क वगैरह, बाद में उसके अंदर इंटरनल प्लास्टर, बाकी जो पुट्टी वगैरह करते हैं. तो पहले तो आपका एक फ्रेम चाहिए, उसके ऊपर आप बाकी सब आगे काम करते हैं. तो सेम वे नेशनल हाईवेज क्या है, आपका एक बेसिकली इंडिया का एक फ्रेम आपका बनाता है. उसके अंदर फिर बाद में आप अंदर की रोड्स को वगैरह लेके जाते हैं. फाइन. सो विल सी हाउ इट इज. नेक्स्ट इज आपका जो स्टेट हाईवेज का जो सॉरी नेशनल हाईवेज का जो स्पेसिफिकेशन है, अगर आप उसके रोड्स को बनाएंगे, उसका कैसा है कि वो स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट उसका जो मेन टास्क है कि वो उसका कम्युनिकेशन पूरे कंट्री के साथ होना चाहिए. अनइंटरप्टेड आपका व्हाट वी कैन से फंक्शन होना चाहिए, कि मतलब वो कभी रुकना नहीं चाहिए. फाइन. इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि बार बार जो हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ जब वॉर होता है तो वो हमारा क्या करते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 हमें कट ऑफ करना चाहते हैं. वो नेशनल हाईवे नंबर 1 कट ऑफ मतलब इन द सेंस कि जो हम लोग अपना कनेक्शन है हमारे जम्मू एंड JNK के साथ में. तो 2000 कारगिल वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, दे आर जस्ट फायरिंग ऑन आर नेशनल हाईवे नंबर 1. अगर नेशनल हाईवे आपका कट ऑफ हो जाता है तो आप वहां पर कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं. तो बेसिकली इस तरीके से हमारे को अपने नेशनल हाईवेज को डिजाइन करना है या बना के रखना है, सो दैट कि हम हर पार्ट में कनेक्ट हो सकते हैं. तो उसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग बोलते हैं भारत माला प्रोजेक्ट है, या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, या कॉरिडोर्स है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट. तो ये सब क्या करते हैं, बेसिकली इसी तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है आपने, जिसके थ्रू आपके हाईवेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. तो जो मैंने पॉइंट बोला, कनेक्टेड द एंटायर रोड नेटवर्क, तो रोड नेटवर्क को आप कनेक्ट करके रखते हैं. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. ये जो नेशनल हाईवेज है जनरली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करता है, या उसका जो पूरा टास्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. फाइन. नेक्स्ट इज जो लास्ट है, अगर इसका आपका एग्जांपल है जो हम महाराष्ट्र के रेफरेंस में या यहाँ पे पुणे के रेफरेंस में बोलेंगे, तो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, दैट इज NH4, नेशनल हाईवे नंबर 4. अगर आप अपने कॉलेज भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होगा, नेशनल हाईवे 4 हमारे साथ से बाजू से निकलता है हमारे. दैट इज वो किसको कनेक्ट करता है, थाने, पुणे, बेलगांव, हुबली, बेंगलोर, चित्तूर एंड लास्ट में चेन्नई. इस तरीके से आपका नीचे तक जाता है आपका. फाइन. तो नेशनल हाईवे 4 है हमारे पास में यहाँ पे पास में. ठीक है. नेक्स्ट इज आपका यहाँ से आके नेशनल हाईवेज के बाद में आप कहाँ पे आते हैं, स्टेट हाईवेज. तो स्टेट हाईवेज क्या करता है बेसिकली, तो नेशनल हाईवेज के बाद में जो स्टेट हाईवेज है वो क्या करता है, स्टेट की जो आर्टरी रोड्स हैं, मतलब जो इंटरनल रोड्स हैं उनको कनेक्ट करता है वो. फाइन. या दूसरे जो स्टेट है, एडजेसेंट स्टेट है, जैसे हमारा महाराष्ट्र है तो बाजू में हमारे पास में ये है अपना गुजरात है, MP है, नीचे हमारे पास कर्नाटक वगैरह है. तो ये स्टेट्स के साथ जो हमारी बॉर्डर्स लग रही है तो उनके साथ भी वो कनेक्ट करता है बेसिकली, या उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ या इंपॉर्टेंट सिटीज के साथ हमारा कनेक्ट करता है. तो ये इसका फंक्शन होता है. ठीक है, स्टेट हाईवे का. या फिर इंटरनल जो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र का, तो वो क्या करेगा, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है उनके साथ कनेक्शन रखेगा. तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ इंटरनल कनेक्शन, स्टेट हाईवेज जो है. फिर अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, द मेन आर्टरीज ऑफ कॉमर्स बाय रोड. तो जो जिसको बोल सकते हैं ना कि आपको ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, जो आप सामान एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाते हैं. तो कॉमर्स इन द सेंस जो आपका बेसिक फंक्शनलिटी है वो आपका यहाँ से लेके आते हैं रोड के थ्रू, वो उसी ज्योग्राफिकल यूनिट पे आपका काम करता है. देन इसका जो ट्रैफिक है, बहुत बार काफी लोग को ये डाउट है कि सर स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज बहुत बार रोड्स अच्छे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं. तो उसमें कैसा है कि मोरलेस स्पेसिफिकेशन स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज का मोरलेस कभी कभी सेम हो सकता है. बहुत बार क्या होता है कि मतलब स्पेसिफिकेशन सेम ही रहता है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवे से भी ज्यादा अच्छे हैं या ज्यादा ट्रैफिक है, बट उसको हम लोग स्टेट हाईवे ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग एक है ना फंक्शन बना के रखा हुआ है कि ये स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे. सो डिपेंड ऑन द फंक्शनलिटी, ये स्टेट हाईवेज कैन हैव मोर फंक्शन देन द नेशनल हाईवेज, बट हम लोगों ने इस तरीके से कैटेगरी बना के रखा है कि ये स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे. फाइन. बट स्पेसिफिकेशन जो है स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे मोर और लेस दे विल बी सेम. फाइन. सपोज हम बोलेंगे डिजाइन फील्ड बोलेंगे, ज्योमेट्री स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, मोर और लेस सेम रहेगा. नेक्स्ट इज अब इसको बनाएगा कौन, जो स्टेट हाईवेज जो है वो बेसिकली कौन बनाता है, दैट इज दी
स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसको बनाएगा या उसको फंक्शन करेगा बेसिकली। फाइन, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपको स्टेट जो है आपको अगर पता करना है कि बेसिकली किसका रहेगा, तो वो है बेसिकली आपका एमएच। ये एमएच यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है महाराष्ट्र का। फाइन, महाराष्ट्र। एसएच इज द स्टेट हाईवे एंड द पुणे सासवड जेजुरी। सो आई थिंक सो कुछ लोग जो यहाँ के ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, दैट इज दी जेजुरी को जो रोड जाता है, जो रोड कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे है, एंड उसका ये नंबर है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट हाईवे है। फाइन, नेक्स्ट अब हम स्टेट हाईवे से आते हैं। हाईवे के स्टेट के बाद में आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर इसको हम लोग बोलते हैं। तो दे आर इंपॉर्टेंट रोड्स, वो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं बेसिकली, एंड वो क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आपको कनेक्ट करता है या इंटरनल आपका ब्रांचिंग करता है बेसिकली। तो स्टेट हाईवेज मतलब आपका क्या होगा, स्टेट हाईवेज जो है वो नेशनल हाईवेज के साथ कनेक्ट होंगे, जो एमडीआर जो रोड्स हैं वो आपका स्टेट हाईवेज के साथ कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से इंटरनल फंक्शन है। फाइन, अब एमडीआर जो है उनकी जो स्पीड या जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो स्पेसिफिकेशन कम रहेगा एज फार एज नेशनल हाईवेज, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट में आपकी उतनी बोल सकते हैं रोड पे जो कंजेशन है वो उतना नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू योर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। फाइन, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा कम रहेगा। नेक्स्ट इज दी ओडीआर। ओडीआर इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट के बाद में जो आपकी जो इंटरनल रोड है जिसको बोलते हैं तालुका या तहसील वगैरह, तो उसके टाइप की जो कनेक्टेड रोड्स हैं जो कनेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ओडीआर रोड। फाइन, तो उनको जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो है इसकी थोड़ी और कम स्पेसिफिकेशन रहेगी एमडीआर से, बिकॉज ये इंटरनल रोड्स पे आ जाएगा, विलेज रोड टाइप से आ जाएगा, बट ये एग्जैक्ट विलेज रोड्स नहीं है, बट विलेज रोड से ऊपर है। तो जो लास्ट कैटेगरी आपका आता है दैट इज द विलेज रोड्स। तो विलेज रोड्स क्या है, दीज रोड आर कनेक्टिंग विलेजेस, जो विलेज को इंटरनल विलेजेस को कनेक्ट करेगी, और बाद में ग्रुप ऑफ नियरेस्ट आपका हायर कैटेगरी। तो वीआर के ऊपर क्या है आपका बेसिकली, वीआर के ऊपर आपका ओडीआर है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, उसको कनेक्ट करेगा। ओडीआर किसको कनेक्ट करेगा, एमडीआर। एमडीआर रहेगा एसएच, दैट इज द स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे। तो ये बेसिकली आपका नागपुर रोड प्लान में एक प्लान बनाया गया कि इस तरीके से हम बाइफर्केशन करके रखेंगे ताकि हम पूरा कंप्लीट ऊपर जो हम लोग नेशनल लेवल से कंप्लीट लास्ट मैन स्टैंड विलेज, जो गांव में एक लोकल आदमी है उसके पास तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, या हर किसी के पास तक कनेक्टिविटी कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया गया था या प्रपोज किया गया था, दैट इज इन नागपुर रोड। नाउ अब इसको अल्टर किया गया, कैसे विल सी, बट मोरलेस जो मैंने आपको बताया था, जैसे विलेज रोड कैसे हो सकता है, इस तरह का विलेज रोड देख सकते हैं जो सिंगल लेन रहेंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, विल सी अबाउट द नेक्स्ट जो मॉडिफाइड हम हो सकते हैं। ये हमने क्या देखा अभी तक, नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई इन द सेंस जो 1981 जो 20 या थर्ड जो हम लोग प्लान बोल सकते हैं, राइट। तो रोड क्लासिफिकेशन एज पर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था उसके अंदर इसको चेंज किया गया। तो उसके पहले आपने देखा था 61 से आपका था 81, फिर 81 से 2001, तो इस तरीके से आपके अलग अलग रोड प्लान है। सो ये जो रोड प्लान जो था थर्ड वाला, जिसको हम लोग जनरली लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं, तो इसके अंदर में क्या हुआ, इसको वापस चेंज किया गया। तो वापस चेंज करने के टाइम पे क्या बोला गया या क्या चेंजेस आया, फर्स्ट इज प्राइमरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम मतलब आप क्या डिफाइन करेंगे कि आपका प्राइमरी सिस्टम के अंदर आपका रहेगा एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज। फाइन, फिर आपका आएगा सेकेंडरी सिस्टम। सेकेंडरी सिस्टम में क्या होगा आपका स्टेट हाईवेज एंड एमडीआर। फाइन, एंड दी टर्शियरी सिस्टम, और जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल रूट्स, उसके अंदर आपका आ जाएगा ओडीआर एंड बीआर। तो इफ यू सी द जो आपका नागपुर रोड प्लान था, मोरलेस द थिंग्स आर प्रीटी सेम, द ओनली थिंग इज आपको क्लब किया गया है। क्लब कैसे किया गया, आपका एक्सप्रेस वे को है और नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करके आपको डायरेक्टली प्राइमरी सिस्टम में डाल दिया, and secondary system and tertiary system. So the only extra thing included is expressway. Fine. So next, what happened? Right. So definition क्या है? More or less it is same as far as the classification of road given by the Nagpur road plan. So next क्या होगा? Next हम जो इसका road plan जो है, अभी हम इसके अंदर वो देखेंगे जो Indian road network है। I click here. So we'll see the आपका ये network कैसा है, ये road plan कैसा है. So it is the website for the National Highway Authority of India. हेलो सर, नीतीश हियर। Yes. सर आपका जो साउंड है ना बहुत लाउड आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। अभी ठीक है आपका मेरा आवाज?
नो सर, अभी भी लाउड आ रहा है, मतलब सेंसिटिविटी जो है ना उसकी वो मतलब ज्यादा है ऐसा लग रहा है सर। Now it is fine. यस सर, यस, नाउ फाइन। क्योंकि मैंने माइक को थोड़ा सा दूर कर दिया, एल्स मेरी पिच तो सेम ही है। फेयर इनफ। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी हमने क्या किया कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमने लिंक ओपन की, तो एनएचएआई जो है वो बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा आपका इसके अंदर आपको नेशनल हाईवे की जो समरी है या स्टेट हाईवे की जो समरी है या कितना लेंथ है कितना कंस्ट्रक्ट हुआ तो यहाँ पे मिल जाएगा। सो इफ यू सी यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है इसके अंदर में। सो इन दैट डाउनलोड सेक्शन इफ आई जस्ट क्लिक हियर, फाइन, इट इज ओपनिंग राइट नाउ। एंड जनरली आई रिकमेंड कि आप ये खुद डाउनलोड करें, बिकॉज आपको अगर मैं सेल्फ पूरा मटेरियल दूंगा सो इट विल बी ए कुम्बरसम जॉब टू डू। दैट्स व्हाई आई पुट अप कि आप थोड़ा सा उसमें स्टडी खुद भी करें। फाइन, सो आई जस्ट जूम इट आउट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्टेट वाइज नेशनल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, आपका नेशनल हाईवेज की आपकी यहाँ पे लेंथ दी हुई है। एंड यहाँ पर आप किसी भी स्टेट का, ठीक है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हुआ है एंड उन्होंने उसके हिसाब से दिया हुआ है कि उसका नेशनल हाईवे नंबर कितना है 16, उसके अंदर में स्टेट हाईवे क्या है आपका 5, 6, 10। तो ये कनेक्टिविटी दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे 16 है, उसको कनेक्ट क्या कर रहा है स्टेट हाईवे दैट इज 5, 6, 10, वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का यहाँ पे लेंथ आपको दिया हुआ है कनेक्टिविटी। तो अगर आपको कभी इस तरह की कुछ अगर स्टडी करना है तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, उसके बाद में आपको अलग अलग स्टेट चाहिए, आपका नीचे आपको सपोज करो यहाँ से आसाम मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा 31 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक स्टेट का। सो अगर आपको सपोज करो मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र, फाइन, इफ यू सी यहाँ पे आपका कर दो पहले। फाइन, तो महाराष्ट्र का अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र देखो कौन कौन से बड़े हाईवेज है जो महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है, वो अलग अलग आपको दिखेंगे एंड इसी के अंदर आपको इस तरीके से लिस्ट मिलता जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके देख सकते हैं इसके अंदर। फाइन, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज का आपका इसके अंदर समरी है इसके अंदर कंप्लीट। एंड दैट टू विद लेंथ, अगर हम बोलेंगे देखिए कि दैट इज 3478 एक हाईवे है, इसका लेंथ कितना है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, तो पूरा इसके अंदर इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। सो राइट नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। नेक्स्ट चीज हमने क्या बोला, स्टेट हाईवे, स्टेट वाइज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज का ये इसमें आपका दिया हुआ विद स्टेट हाईवे के साथ नेशनल हाईवे का भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका इसका हाईवे का समरी है बेसिकली। वहाँ पे कैसा था आपका कंप्लीट था कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली एक समरी है। समरी इन द सेंस इफ यू सी हियर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो हर एक स्टेट का एक समरी दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, ठीक है, हरियाणा में कितना है। तो इस तरीके से आप हर एक का देख सकते हो। तो महाराष्ट्र में कितना है 17,757, जो हम बोल सकते हैं अगर आप किसी को भी करेंगे कंपेरिजन सबसे ज्यादा हमारे पास में नेशनल हाईवे की जो लेंथ है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र। फाइन, सो फॉर टुडे आई जस्ट क्लोजिंग इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस साइट, आपके पास में बहुत कुछ कंटेंट है इसके अंदर देखने के लिए। एनएचआई क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स, जो मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में 7 फेजेस हैं बेसिकली। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर में। फाइन, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी इन दिस एज फार एज दिस पार्ट इज देयर। एंड दी दूसरा मैं जो बोलूंगा आपको इसके अंदर बाद में आएगा, दैट इज द इंडियन रोड नेटवर्क। सो बट फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। फाइन, सो हम लोग जो इंडियन रोड नेटवर्क की जो बात कर रहे हैं इसके अंदर में, सो बेसिकली आई एम जस्ट ओपनिंग इट अगेन। फाइन, सो इंडियन रोड नेटवर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका इस तरीके से आपको ये पूरा पार्ट मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे इसके अलग अलग साइट्स हैं, वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको काम का था मैंने आपको अंदर से बता दिया है। फाइन, सो फॉर एज आई टोल्ड यू अगेन आई एम जस्ट क्लोजिंग इट फॉर नाउ। यू कैन जस्ट सर्च एज फार एज दी योर इंटरेस्ट जो आपको इसके अंदर देखना है, मोर और लेस दिस इज द क्लासिफिकेशन। एंड इस तरीके से आप इसके अंदर जाके पूरा देख सकते हैं। फाइन, ओके, तो हमने बोला ये तो नेशनल हाईवेज का हो गया। अगर आपको स्टेट हाईवेज का या महाराष्ट्र के रिलेटेड बात करना है अभी आपको, तो यहाँ पे वो कौन मैनेज करता है, पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र जो है, अगर आप उसकी साइट पे जाएंगे तो आपको इसके रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा बेसिकली, राइट। सो पीडब्ल्यूडी इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी हर साल वैकेंसीज मिल सकती हैं, तो उसको वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं अपना। फाइन, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट व्हाट वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज देयर। तो ये आपका पब्लिक डिपार्टमेंट है।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखा है, इस तरीके से साइट को डेवलप किया। आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप अपना क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा। एज फार एज दी आपको रोड ट्रैक करना है कोई भी, तो यहाँ पे एक सर्विस है, दैट इज दी रोड ट्रैकर। आपको यहाँ से रोड ट्रैक कर सकते हैं, आपका टोल्स वगैरह। तो आपको जो भी एटलीस्ट फॉर दी महाराष्ट्र, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन दी महाराष्ट्र रीजन, तो आप महाराष्ट्र के रीजन आपको अगर रिलेटेड ट्रैक करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो पीडब्ल्यू इट्स नॉट ओनली अबाउट द कि आपको ये सिर्फ रोड्स बनाएगा, बाकी चीजें बनाता है, बट राइट नाउ एज फार एज वी आर लर्निंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग सिर्फ रोड्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो रोड वगैरह के बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी ये रोड ट्रैक यहाँ पे बंद है, ठीक है। इसके अंदर मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एमएसआरडीसी इम्पोर्टेंट है, एमबी नेशनल हाईवेज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए आप चाहिए तो यहाँ पर ये जो है आपका, अगर आपको कभी इसके अंदर इंटरेस्ट है कि मुझे कहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ पे जाके इसके अंदर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेगा। फाइन। एंड एमएसआरडीसी के लिए यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। ओके, what I'll do is I'll just open in another browser. Because जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाने जा रहा हूँ, that is the MSRDC. Again, it's an important, what we can say, important body basically. इम्पोर्टेंट बॉडी इन द सेंस कि बेसिकली आपका जो भी महाराष्ट्र के अंदर में काफी सारे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं आपके, वो कहाँ से होते हैं, उस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हैं। सो विल ओपन हियर। समटाइम्स माइक्रोसॉफ्ट हैज टेक्निकल ग्लिचेस देयर, सो नॉट पॉसिबल। सो एमएसआरडीसी, एमएसआरडीसी के अगर हम ओपन करते हैं साइड भी, तो एमएसआरडीसी इज अपना रोड डेवलपमेंट की अलग एजेंसी है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो इफ यू सी इन दिस वन, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कौन कौन से कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर है अचीवमेंट्स इन द सेंस उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया। यू सी बांद्रा वर्ली सीलिंग, आपका 50 फ्लाईओवर, जिसके अंदर मुंबई ट्रैफिक इंप्रूवमेंट उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट किया है। बर्फी वाला फ्लाईओवर, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे एंड पनवेल बाईपास प्रोजेक्ट, सुमन नगर फ्लाईओवर। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो उन्होंने अचीव कर लिया। उसके अलावा उनके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। Right. So these are the things basically यहाँ पे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट ऑल्सो गो थ्रू दिस साइट। तो ये आपके पब्लिक ट्रस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही था। उन्होंने दो चीज़ आपको दिखाया है, एमएसआरडीसी है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के अंदर आपका एनएचएआई की साइट है, एमएसआरडीसी के अंदर आपका ये एमएसआरडीसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं इसके अंदर में। फाइन। सो दिस इज मोर और लेस दी one second is okay. So this is about the sites basically जो आप देख सकते हैं, जो मुझे लगता है आपको थोड़ा पता होना चाहिए अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फाइन। अगर आपको बाद में कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो टेंडर्स वगैरह ये सब आपको पूरा सब यहाँ पे मिल जाएगा, सेम स्टेट हाईवे में, एंड इवन दी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। फाइन। टुडे आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर एंड यू कैन सर्च एट योर एंड लेटर ऑन। सर यश हियर। यस सर, आपने पीपीटी डाली है टीम्स पे? अभी नहीं डाला, लेक्चर फिनिश होने के बाद आएगा। ओके सर। लेक्चर पहले फिनिश होने के पहले नहीं डालूंगा कभी भी, जब लेक्चर फिनिश हो जाएगा तभी ही आएगा आपके पास। ओके सर। ठीक है। ये हमने अभी आपका ये पढ़ के, ओके, तो ये भी हमने आपका पढ़ा इसके अंदर में कि मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या क्या है, और हम लोगों ने नेशनल लेवल पे भी देखा कि किस तरह के रोड नेटवर्क के बारे में आप कहाँ से पता कर सकते हैं, स्टेट हाईवेज के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में। एंड देन सपोज करो अगर आपको महाराष्ट्र के रिलेटेड पता करना है तो कौन सा रहेगा आपका, दैट इज द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। वहाँ से जाके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनरी बॉडीज, बेसिक जो कौन कौन सी फंक्शनरी बॉडीज हैं, एंड उन फंक्शनरी बॉडीज के अकॉर्डिंग आप कैसे जाके आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो बेसिकली एक और क्लासिफिकेशन था, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स।
अर्बन रूट्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसके अंदर में 4 पार्ट्स हैं आपके, आर्टेरियल रूट्स, सब आर्टेरियल रूट्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स एंड लोकल स्ट्रीट्स। ये आपका इंटरनल रूट्स को आप कैसे कनेक्ट करते हो। तो जो पहला जो आर्टेरियल रूट्स है, आप क्या करते हैं उसके अंदर अर्बन रूट्स को प्राइमरली ट्रैफिक और कंटिन्यूस रूट के हिसाब से आप एक दूसरे का कनेक्ट करते हैं जो बड़े लेवल पे रहेगा। उससे छोटे लेवल पे आपको कैसे रहेगा, सब आर्टेरियल, जो आर्टेरियल मतलब बड़ी जो रोड्स हैं आपके, उससे जो कनेक्टिंग जो स्मॉलर रोड्स रहेंगे, जिसकी ट्रैफिक मोबिलिटी वगैरह कम रहेगी, तो उसको आप लोग लेके आएंगे सब आर्टेरियल रोड्स में। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं, जो लोकल स्ट्रीट्स हैं आपकी, उससे कलेक्टर जो है आपका, मतलब आपकी मेन जो रोड रहेगा उसको कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली वो क्या करती है, आर्टरीज रोड और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, आपको आर्टरीज रोड कनेक्ट करेगी और ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू लोकल स्ट्रीट। फाइनली आपका लोकल स्ट्रीट जो आपको बोल सकते हैं आपके गली मोहल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपके जो इंटरनल, जैसे हम लोग बोलेंगे सोसाइटी से रोड आपकी जा रही है तो वो एक मेन रोड को कनेक्ट करेगी बाद में। तो इस तरीके से इंटरनल रोड वगैरह। मोरलेस दिस इज अर्बन रोड। अर्बन रोड इन द सेंस अभी कैसा है कि आपका जो नॉर्मल सिटीज वगैरह में आते जा रहे हैं, तो नॉर्मल सिटीज के अंदर में आपका इस तरह के रोड को क्लासीफाई किया गया है कि उसको किस तरीके से बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज दी रोड पैटर्न्स। अभी जो हम लोगों ने पहले ही बोला कि ये सब होने के बाद में हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है कि रोड पैटर्न्स कैसे रहेंगे। हमने यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोड देख लिया हमने कि अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा। अभी हमें किसी को बात करना है कि रोड का अगर हमें पैटर्न्स देखना है कि रोड के अलग अलग पैटर्न्स कैसे रहते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली 5 या 5 मेजर पैटर्न्स हैं। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न में कैसे रहेगा कि रोड जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न में रहेंगे या ग्रिड फॉर्म करेगा उस तरीके से। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपका चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ सिटी रोड। विल सी द मैप आल्सो लेटर ऑन। आपका हेक्सागोनल एक पैटर्न रहेगा जिसमें आपका हेक्सागन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। थर्ड वन इज द रेडियल और स्टार, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार ब्लॉक पैटर्न। तो इसके अंदर कैसा रहेगा कि आपके स्टार पैटर्न में रहेंगे, अब रोड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड में निकलेगा स्टार पैटर्न। देन दी सर्कुलर पैटर्न जो रहेगा, मेन इसका सबका जो रेडियल पैटर्न में कैसा है कि बाहर की तरफ, आपने अगर गाड़ी का टायर देखा होगा तो उसके अंदर कैसा होता है कि चीजें अंदर से बाहर की तरफ जाती है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न टाइप बोलते हैं। सो विल सी, जो हम लोग रेडियल की पैटर्न की जब बात करेंगे, सी इन सम टाइम ओनली। तो उसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग होता है सर्कुलर पैटर्न में, वो आपका कैनॉट प्लेस में आता है। एंड स्टार या ग्रिड पैटर्न जो है वो आपका अगेन बाहर की तरफ रेडिएट करेगा एंड वो रोड को कनेक्ट करेगा, मेन जो रेड्स रहेगा, रोड्स रहेगी या मेन स्ट्रीट्स रहेगी। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने बात किया। तो जस्ट यू फील सी इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग का चंडीगढ़ का जो एडमिन ब्रांच है उनका ये मैप है। एंड इफ यू सी, ओके सॉरी, सो ये क्या है, रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न दिखाता है। इफ यू सी यहाँ पर जो रोड्स है, ये येलो पार्ट जो है अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में, ब्लॉक पैटर्न में, तो इस तरीके का रोड्स है। इसके अंदर दिक्कत क्या होता है कि टाइम के बाद ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है क्योंकि सब जगह ट्रैफिक जो है एक ही साइड में ब्लॉक में जा रहा है। तो ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज आते हैं बहुत बार। तो इसका ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये चंडीगढ़ की सिटी रोड्स है। नेक्स्ट आपका मैंने जो बोला रेडियली, तो अगर आप ये देखेंगे इस तरह का रेडियली मतलब कैसा हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ एक तरीके से रोड्स आ रही है। आपका अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, मेरा कर्सर से देखिए आप, तो कर्सर में अगर आपका मूव कर रहा हूँ तो ये आपका एक सर्कुलर पैटर्न है, फिर उसके अंदर एक और सर्कुलर पैटर्न है, फिर एक और सर्कुलर पैटर्न है। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी भी ट्रैफिक पे जाएंगे तो आप ऐसे घूम जाते हैं अलग अलग। फाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली दी रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न। तो ये यहाँ पे सर्कुलर है, उसी तरीके से आपका हेक्सागोनल या आपका पिरामिड वगैरह इस तरीके से आपके अलग अलग बाकी पैटर्न रहेंगे। बट मोर लेस जो हम लोग स्टार ग्रेड पैटर्न जो बोल रहे हैं वो इसी तरीके से रहेगा। ये शेप्स कैन बी चेंज बट मोर लेस दी सिमेट्री रिमेन सेम, जो आपका रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न। और ये जो है आपका फेमस कैनॉट प्लेस, अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आप देखेंगे इस तरीके से हर थोड़ी दूर के जाने के बाद आपको इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न से आपको रोड दिखेगा। सो कैनॉट प्लेस जनरली जिसको आज it was established by the Britishers and today more or less the place was famous for the Rajiv Chowk। अगर कभी आप मेट्रो के थ्रू भी घूम रहे हैं तो राजीव चौक के नाम से फेमस है। So more or less these are the kind of road patterns. Fine. Okay. As far as the to conclude this lecture, because already it is 11:43 and if you remember कि हमारा एक जनरल पैटर्न है कि we don't study completely for 1 hour, we'll just have a session around for 40-45 minutes and then we have a discussion. Fine, तो हमने रोड पैटर्न्स वगैरह का और बाकी सब डिस्कस किए। नाउ
to brief you about कि next session कब रहेगा. Next session will be on 15th July, Wednesday, that to 10 to 11 a.m. Fine. So before concluding further, fine, we want to take a quick review कि आज हमने क्या पढ़ा है. तो हम अलग अलग बच्चों से आपका अलग अलग रिव्यू लेंगे इसके अंदर में. Fine. So we want to have a review कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है. Fine. So we'll take a random call in here. So random call के लिए सबसे पहले हम एक इसमें लेते हैं आदित्य. यस सर. So what do you think, क्या क्या पढ़ा आज हमने? सर पहले तो हमने नागपुर रोड प्लान से चालू किया. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड. फिर आया मॉडिफाइड रोड क्लासिफिकेशन 1981 टू 2001. फिर उसमें आया प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम और रूरल रोड्स. फिर आया क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स. उसमें आया आर्टीरियल रोड्स, सब आर्टीरियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स, लोकल स्ट्रीट्स. फिर आया रोड पैटर्न्स. उसमें आया रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. आपने ये सब लिख के रखा है कि कहाँ से देख के बोल रहे हैं आप? अच्छा, मींस आई वाज इम्प्रेस्ड बेसिक. लिखा है आपने? हाँ. Okay, to have a quick review with your or basically the feedback, what do you think? The pace is going fast, slow or comfortable? What? नो सर, इट इज कंफर्टेबल. इन स्पेस ऐसा नहीं है ना कि बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग, या फिर नहीं, ऐसा है कि मतलब नहीं आप सर, थोड़ा सा ठीक है. और कुछ इंक्लूड करना चाहिए. बिकॉज राइट नाउ मोर लेस इफ यू सी माय स्ट्रेटजी इज जनरली आई टीच अराउंड 40 मिनट्स और 45 मिनट्स. आपका अगर 1 घंटा है, फाइन, बिकॉज इट वाज अ इंस्ट्रक्शन. मींस इंस्ट्रक्शन उसी तरीके से आप 40 मिनट तक पढ़ाओ, बाकी 20 मिनट थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन या डिस्कशन भी होना चाहिए, सो दैट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आप मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं. So it is just kind of discussion also. And okay, we'll take another one. Thank you, Aditya, and we'll take another one. Ganesh, Yes, Ganesh sir. Yunurkar. Ganesh Yunurkar. यस सर. Okay. So just tell me कि जो roads हैं, national highways क्या करता है, मतलब उसका टास्क क्या है बेसिकली? सर नेशनल हाईवे जो रोड्स का जो रोड्स है नेशनल स्टेट को जो अपने है वो कनेक्ट करता है. Okay. कि उसके वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब नेशनल टू नेशनल अपन ट्रांसपोर्ट इजीली रहे. और उसकी जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो स्टेट हाईवे से ज़्यादा रहती है. ज़्यादा रहेगी स्टेट हाईवे से स्पेसिफिकेशन? यस सर. जनरली सेम रहता है, बिकॉज कैसा है कि उसकी स्पेसिफिकेशन सेम इसलिए रखते हैं कि उनके पैरामीटर सेम है बेसिकली. ठीक है. यस. बट बहुत बार कैसा हो सकता है कि बहुत बार मतलब कई केसेस में ऐसा भी है कि जो स्टेट हाईवेज का जो फंक्शन है या जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो नेशनल हाईवे से ज्यादा है. बट एक Yes, सिस्टम हमने yes, बना sir. के रख लिया है कि ये नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे है, तो उस तरीके से. बट यस सर. डिजाइन स्पीड बोलेंगे या फंक्शनलिटी बोलेंगे, वो दोनों का नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का सेम. ओके. ठीक है. ओके, फाइन, थैंक यू. विल टेक अनदर वन. ओके, नेक्स्ट वन इज Kanchan Bhaskarali. Kanchan is there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. स्टेट हाईवे का फंक्शन क्या है, बताओ क्या करता है स्टेट हाईवे? सर स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट हेडर कॉर्डर को कनेक्ट करता है और इम्पोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है विद इन द स्टेट. ओके, गुड. आपको स्टेट हाईवे का नाम जानते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में? यस सर. पुणे सासवड रोड. पुणे सासवड. ठीक है. मुझे नंबर नहीं चाहिए, आप जो जनरली नाम भी जानते हैं तो सफिशिएंट है. ठीक है, क्योंकि नंबर याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा एक आपका आइडिया भी तो अच्छा है. सर ठीक है. 86 क्या बोल रहे हैं? स्टेट हाईवे 64. ओके, ग्रेट. अगर आपको ऐसा पता भी है तो जब आपके एग्जाम से ऐसा कुछ है तो आप उस टाइम पे उसका मेंशन भी कर सकते हैं कि एमएच स्टेट हाईवे 64 इज कनेक्टिंग बिटवीन पुणे एंड सासवड. तो गुड, अगर आपका इस तरीके से आपको आइडिया भी है तो फाइन. सो थैंक यू कंचन. विल टेक अनदर वन. ओके, निखिल शर्मा. यस सर. ओके, स्टेट हाईवे के बाद में क्या आएगा आपका? सर अर्बन रोड. नहीं, बेसिकली आपका मेजर मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड्स आएगा आपका, जिसको बोलते हैं सर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. हाँ, दे आर कनेक्टिंग cities in two state highway.
ठीक है, चलेगा, तो उसको बोलते हैं हम एमडीआर और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, ओके। एंड देन प्रियंका मोरे। Yes, sir. ओके, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद में सेकंड, उसके बाद में कौन सा रोड आएगा उसके बाद? Or the district road. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, वो क्या करता है बेसिकली? वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड अलग होता है हाईवे और हाईवे रोड से। वो district other district road that connected to or more district road कनेक्ट होता है वो, दैट इज विलेजेस रोड्स वगैरह उसमें होते हैं। ठीक है, ओके सर। fair enough. So next we'll talk about, yes, thank you. Next is Balraj Shelke. Balraj is here. यस सर। Okay. So अभी हमने लास्ट जो पढ़ा हमने एमडीआर ओडीआर था, दैट इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। उसके बाद में लास्ट एग्जांपल क्या है उसमें, या लास्ट कैटेगरी क्या है? लास्ट कैटेगरी इज विलेज रोड्स। ओके, विलेज रोड्स क्या करता है बेसिकली? सर विलेज रोड्स आर रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर और नियरेस्ट रोड्स लाइक हायर कैटेगरी ओडीआर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट विल टेक श्यामल कस्तूरे। यस सर। ओके, व्हाट डू यू थिंक, आज आपने क्या क्या पढ़ा है आपने? सर आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स और रोड पैटर्न पढ़ा। उसमें बेस्ड ऑन वेदर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैरेज वे और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पेमेंट सर्फिंग प्रोवाइडेड। उसके बाद नागपुर रोड हाईवे, मॉडिफाइड रोड हाईवे, रोड क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स और रोड पैटर्न में सर पढ़ा। Fair enough. Okay. Then Trupti Kute. Yes, sir. All weather roads और fair weather roads में क्या डिफरेंस है? हमने स्टार्टिंग में कुछ ये पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन कि Yes, एक sir. ऑल वेदर रोड्स रहता है, एक फेयर वेदर रोड रहता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? No idea, sir. हुआ इन द सेंस स्टार्टिंग में सबसे पहला स्लाइड उसी की चीज के रिगार्डिंग था। सो बेसिकली Yes, sir. ऑल वेदर रोड्स एंड फेयर वेदर रोड्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, ऑल वेदर रोड्स मतलब वो हर सीजन में आपका काम में रहेगा, वो ट्रैफिक वगैरह जो भी है उसके ऊपर अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगा, ठीक है। बट फेयर वेदर रोड्स वगैरह में क्या डिफरेंस आएगा कि उसमें कभी भी अगर बारिश वगैरह ऐसा कुछ है तो फंक्शन पाएगा जो उसका काम है, ये जो टास्क है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसका, ठीक। Then we have the Annie Varghese. Annie is there. Good morning, sir. Good morning. Yes. Yes, sir. Okay. What do you think? हमने क्या पढ़ा आज? So we learned today classification of roads based on weather, based on carriageway, based on the type of pavement surfacing of road, and based on the Nagpur road plan. We learned the analysis and BS, and we also learned about the modified road classification and the different road patterns. Fair enough. ठीक है. So I think so. We have taken the view and reviews of all. Fine. So what we'll do? Meanwhile मैंने आपका जो feedback ले लिया. So आपका जो content sharing जो part है. Fine. So already I told you as soon as your lectures are finished. So what we'll do? We'll finish. What we can say, upload you this PPT in the PDF format. आपका मैं इसमें क्या करूँगा आपका
अभी आपका लेक्चर मैं आपका शेयर कर देता हूँ. So before what we can say concluding this lecture, we'll take a quick review कि आपको दिखेगा नहीं दिखेगा. So right now I am just converted it as far as the PPT part is there. Fine, it is more or less ready, and I'm just putting it for you as far as the your team is there. That is team is आपका BE का चल रहा है आपका लेक्चर ये. Fine. So meanwhile, yes, the platform is open for all. अगर किसी को कुछ questions या queries है, so they can put up their questions or queries. अगर किसी questions या queries हैं कुछ, so they can ask. Meanwhile, I'll just upload the file for you, so that will have a what we can say यहीं पे आपका content वगैरह जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा. You can just confirm. Yes, anyone any question or queries? Yes, anyone? किसी कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरीज नहीं है आज का? Okay, fair enough. So I'll just brief you about कि next time हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. So more or less we'll be studying about the national highways की planning कैसे होता है, उसका preparation plans वगैरह क्या होते हैं. We'll have a discussion on that, right? And after that we'll take a quick review on अगर आपका revision 2021 जो था vision plans वगैरह जो हैं आपके rural का 2025 का vision plans, we'll take another look on that also. And more or less we are on the verge of finishing your unit number 1. So fine, क्योंकि हमने जो बाकी आपके इस तरीके से जो plans है सब कुछ है उसके अंदर हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा. And just in case after that also you require कि हमें एक quick recap लेना चाहिए, we'll see that way also कि हमें quick recap लेना है या crash चीज देखनी है कि नहीं देखनी है उसके अंदर में. Fine. So as far as now I can just want to confirm from your side, I have just uploaded the PPT in form of PDF in the फाइल सेक्शन. जो आपकी टीम्स है बी सिविल का जो सेक्शन है आपका क्लास का उसके अंदर फाइल से मैंने आपका अभी ये पीडीएफ फॉर्म में आपका आज का पीपीटी डाल दिया है. सो जस्ट यू कैन सी इट एंड यू कैन कंफर्म मी so that in a short while we can what we can say conclude the lecture for today. Yes sir, it is visible. It is visible. Fine. Yes, sir. So next thing is to have a what we can say smooth conversation. Just in case I know कि हर कोई आंसर जानता है बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके. Even I have seen in the chat box also that is मैंने आपका NHI का फुल फॉर्म पूछा था. So Yash has answered it, then Nikita, then Pradnesh, Utkarsh, Nikhil Khorate, and again Utkarsh has given answer for IRC, Akshay Thomre. So yes, it's a good practice. Basically I can say कि I know कि हर टाइम में हर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ से because I to talk about today we have around what we can say 30 students in the classroom. अगर हम लोग 30 लोग हैं 30 में से 29 students हैं including me it is 30. So in that way we have a lot of students here. So in that way calling each and everyone a tedious task. So you have to understand the thing कि हमें जब इस तरीके से काम करना है so we have to be very much फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर हम हर किसी का आंसर नहीं आ पा रहे तो आप उसको कैसे अपना क्वेश्चन का रेज कर सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं उसका so that you will have a proper yes कि आपका so that what we can say कि लास्ट का जो हम जैसे डिस्कशन पार्ट है so I can say कि okay yes मैंने आपके चैट सेक्शन में आपके आंसर्स देखे. so in that way मैं आपके आंसर्स को एक्नॉलेज मींस आपने वो yes आपने वो आंसर किए हैं वो आंसर सही है मैं आपको बोल सकता हूँ. Fine. So I think so this way we will interact with each other because it is virtual. ठीक है. हर एक चीज इस तरीके से एल्स पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर किसी का आंसर आपका करूं कि आप बोलेंगे कि सर मैं भी बोलना चाहता हूं मैं भी बोलना चाहता हूं. सो विल टेक ऑल आई थिंक सो मोर और लेस जनरली मैं डेली रैंडम बेसिस पे हर एक अलग अलग स्टूडेंट्स को लेता हूं. इट्स नॉट कि इट्स ओनली वन स्टूडेंट आंसरिंग द सेम टाइम. फाइन. स्टिल इफ यू फील यू कैन रेज हैंड एंड I'll make sure कि I'll definitely provide opportunity to all in a fair manner so that it will not be a biased what we can say study. Fine. But again I know कि whatsoever good thing can be done
समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि नहीं किसी को लगेगा नहीं फिर भी इनजस्टिस हो रहा है, सो यू कैन drop me a message or call anytime so that we can just improvise our what we'll say way of teaching or way of working. Fine. So I can and don't forget कि ये जो चीज है अभी आज हमने ये रिकॉर्ड भी किया है बेसिकली आज का जो सेशन है. So जो ये सेशन है will I think so मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमने एक YouTube पे भी कंटेंट डाला है ये वाला so that you will have the access. I know कि कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सर मेरा आज डेटा नहीं है या बाद में देखना चाहते हैं जो हमने आज ये लेक्चर पढ़ा था. सो सेम कंटेंट आपके पास एक वीडियो फॉर्म में अवेलेबल रहेगा बाद में. नेक्स्ट थिंग इज सेम थिंग तो आपका कंटेंट या पीडीएफ है अभी मैं ऑलरेडी आपके लिए फाइल्स के इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ, राइट. एंड एज फार एज द गूगल क्लासरूम इज देयर आई एम वर्किंग इट क्लब दिस स्टफ बिकॉज अभी कैसा है कि आपका जो पार्ट है दैट इज what we can say unit है अभी वो पाइट. सो व्हाट विल डू जब आपका गूगल क्लासरूम में उसको करूंगा तो आई थिंक सो यूनिट 1 फिनिश होने के बाद में क्लब करके चाहिए तो मैं उसका पीडीएफ करके एक बार में कंप्लीट उसके ऊपर डाल दूंगा बिकॉज राइट नाउ इट इज इन पार्ट सेल्स. सो एल्स यू कैन आल्सो गिव मी द सजेशन कि आपको पार्ट्स में चलेगा तो मैं अभी भी उसको आपको अपलोड करके रख सकता हूँ गूगल क्लासरूम पे और क्लब फॉर्म में चाहिए तो बाद में मैं उसको कंप्लीट एक जगह कंपाइल करके दैट इज दीज आर द नोट्स फॉर यूनिट नंबर 1 ऐसे क्लब करके भी दे सकता हूँ. तो विल सी कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल and we'll sort out the things in that way. Fine. So for today, I think so this is it. And मैंने आपको पहले ही बोला था the next lecture will be on what? Next lecture will be on 15th of and then to 10 to 11. Fine. So 15 तारीख को आपका next lecture रहेगा and that too on Wednesday. And yes, Rohit, you want to comment anything? Rohit Chippa. No, sir. Oh, okay. So, yes, so for today, this is it. And we'll signing off for today. Fine. Thank you, and have a nice day. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Okay. sir. Yes.